Good morning, students. Today we are going to discuss the topic parts of flower and estivation in the same chapter, morphology of flowering plants. So, let me tell you certain things as such, parts of the plants. Sepals. What is the other name of sepals? We also call this as calyx. It provides the protection when the flower is in the bud condition. It provides protection. Mostly it is green in color, so it also helps in performing photosynthesis. Now what can happen is certain times you see the sepals are united, and sometimes you will see that the sepals are separated free. So when united, this is called as gamosepalous. When free, it is called as polysepalous. Polysepalous. So this is all about sepals. Now petals. As you know, this is also called as corolla. Now they can be free or they can be fused together. When they are fused together, they are called as gamopetalous. When they are free, they are called as polypetalous. Now let us talk about estivation. I will tell you something about estivation. It is actually the arrangement of sepals and petals with respect to other floral members, that is endoecium and gynoecium, belonging to the same whole, WHORL. That is called as estivation. Estivation. So it is the arrangement of sepals and petals with respect to other floral members in the same whole. So we will be talking about arrangement of sepals and petals in estivation. Now there are different types of estivation. हम अलग अलग तरह के एस्टिवेशन को देखेंगे. बहुत आसान है देखना भी, ठीक है. आप फिजिकली भी इसको देख सकते हैं. जब हम ये बताएंगे तो हम आपको बताएंगे इसको फिजिकली कैसे देखा जाता है फ्लावर को. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट different type of estivation. First is valvate estivation. Second is twisted estivation. Third is imbricate estivation. Fourth one is वैक्सिलरी एस्टिवेशन. चार तरह के हैं, valvate, twisted, imbricate और वैक्सिलरी. Now let us see the arrangement of sepals and petals here. What do you mean by valvate? What do you mean by twisted? What do you mean by imbricate? But first let us write it here so I can get a little space to draw a diagram also.
First is valvate, second one is twisted, third one is imbricate, and the fourth one is vexillary. Okay, vexillary. Now let us start with the valvate estivation first of all. In valvate estivation you will see that the appendages, the margins of the appendages, the margins of sepals and petals will not overlap each other. आप जहाँ पे पेटल्स और या सेपल्स को देखोगे वो ऐसे फ्लावर में चारों तरफ पेटल्स है, कोरोला है, लेकिन एक दूसरे के मार्जिन्स को, एक दूसरे के लास्ट पॉइंट को अगर वो टच नहीं कर रहे होंगे, इस तरह के एस्टिवेशन को हम कहते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। यानी कि कुछ ऐसा आपने देखा होगा, वो फ्लावर का जो कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो एक दूसरे के मार्जिन्स को टच नहीं करते, ऐसा हम कैलाट्रोपिस में देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक केस है जहां पे मार्जिन्स को टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के। देखिए थोड़ा थोड़ा गैप है आपस में, बीच में थोड़ा गैप मेंटेन किया है इन्होंने, यहाँ पे मेंटेन्ड है और मार्जिन्स को टच नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। इट इज फाउंड इन प्लांट सच एज कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस इस प्लांट से पाया जाता है वॉल्वेट एस्टिवेशन, कैलाट्रोपिस में। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्विस्टेड एस्टिवेशन। आई विल ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ, चलो ये एक डायग्राम हो गया वॉल्वेट का। नाउ अनदर डायग्राम विल बी ऑफ ट्विस्टेड एस्टिवेशन। So I should draw this here because here space is left. Twisted estivation. In twisted estivation you will see that one of the appendages will be above another appendages. आप देखिए ये वाला इसके ऊपर है, ये वाला इसके ऊपर है, ये वाला इसके नीचे। दूसरा एंड जो होगा, अब अगर इसके ये किसी के नीचे है तो ये किसी से ऊपर होगा, ऐसे। आप देख रहे हैं, ये वाला एंड नीचे है, ये वाला एंड ऊपर है। ये वाला एंड नीचे है तो ये किसी के ऊपर होगा, ऐसे ऐसे। अब ये वाला एंड ऊपर था तो इसका ये वाला एंड जो होगा वो नीचे होगा। सॉरी, ऐसे। अब देखिए इस तरह के एस्टिवेशन को जहां पे एक एंड, एक सेपल्स जो है किसी के ऊपर हो और दूसरा उसी का जो अगला मार्जिन है, अगला एंड है, वो किसी के नीचे हो, अल्टरनेट पैटर्न में हो सारे सेपल्स या पेटल्स, इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ट्विस्टेड। यानी कि अगर थोड़ा बड़ा बनाना हो इसको, क्योंकि छोटा बना था दिख नहीं रहा होगा, और क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए ये देखिए, ये एक हो गया, एक मान लीजिए सेपल्स या पेटल्स, ये दूसरा हो गया। आप देखिए ये इसके ऊपर है और ये इसके नीचे है, तो ये वाला जो होगा वो किसी के नीचे होगा। ये देखिए, ओके। अब ये इसके ऊपर है तो ये किसी के नीचे होगा, ऐसे। अब अगर ये किसी के ऊपर है तो ये किसी से नीचे होगा, और ये होगा ऐसे। इस तरह के एस्टिवेशन को हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। देखिए आप जो ड्रॉ किया हुआ है, इस तरह के एस्टिवेशन को ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं।
and this is present in ladyfinger, cotton plants, etc. कॉटन प्लांट इस तरह के एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है जिस प्लांट से मिलेगा आपको सेपल्स या पेटल्स का. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है. यह भी हो सकता है कि दोनों जो मार्जिन्स हैं वो किसी से ऊपर हो, जैसे दिख रहा है आपको, बड़ा बनाते हैं. दोनों मार्जिन्स किसी से ऊपर हैं. ये भी पॉसिबल है कि दोनों मार्जिन्स किसी से नीचे हों. और ये भी पॉसिबल है कि एक नीचे हो और एक ऊपर. देयर इज नो रूल एज सच. तो सच काइंड ऑफ एस्टिवेशन इज प्रेजेंट इन कैसिया इन गुलमोहर. ये आपको कैसिया में मिलेगा एंड गुलमोहर प्लांट में मिलेगा. And this is called as imbricate estivation. Okay, now we'll be talking about waxillary estivation. I hope it is clear. In case of waxillary estivation, you will find that one of the petal or the sepal will be very big in size, and that will be called as standard. ये सबसे ऊपर होगा. इसमें दो और छोटे होंगे जो उसके नीचे होंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज लैटरल विंग्स. जैसे कि ये लैटरल विंग्स. तो ये सबसे नीचे रहता है, पोस्टीरियर में. फ्लावर के सबसे नीचे वाले हिस्से का जो पेटल्स होता है वो सबसे बड़ा होता है. फिर उसके नीचे लैटरल विंग्स होते हैं, यानी कि दो उससे छोटे होते हैं और उसके अंदर होते हैं. फिर दो और छोटे होते हैं, एंटीरियर पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, और वो लैटरल विंग्स के भी अंदर होते हैं. उनको हम बोलते हैं कील. और ये दो होते हैं, टू, प्रेजेंट इन द एंटीरियर रीजन, इन द एंटीरियर पोर्शन. तो आप देखिए यहाँ क्या हो गया, एक सबसे बड़ा स्टैंडर्ड हो गया, फिर उसके नीचे लैटरल दो, फिर उसके नीचे दो. तो ये हो गया 1 + 2 + 2, 5. सबसे बड़ा वाला स्टैंडर्ड सबसे पीछे की तरफ है, फूल का एकदम नीचे वाला हिस्सा है जो सबसे बड़ा होता है, सब चीज़ों को एनवलप किए रहता है, ज़्यादातर पोर्शन को. फिर लैटरल विंग्स उसके नीचे होते हैं, फिर कील उसके भी नीचे होता है, सबसे एंटीरियर पोर्शन सबसे अंदर रहता है. तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन. इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ पी प्लांट. सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ एस्टिवेशन. आप किसी भी फ्लावर को देख के उनके एस्टिवेशन के बारे में बता सकते हैं. ओके, नाउ let us talk about certain other things. हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में, इंक्लूडिंग एंड्रूशियम और गाइनीशियम के बारे में. ओके, नाउ एज यू नो, एंड्रूशियम इज द collection of stamens. It is the collection of stamens or the male reproductive part. Stamen consists of two parts as such.
जो नीचे वाला स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, एंड द अबव पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर. दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फिलामेंट and the above part is called as anther. Inside the anther, pollen grains will get mature. The anther would dehiscence. The anther wall will dehiscence and will release the pollen grain, and with the help of various pollinating agents, these pollen grain will get deposited on the stigma of the flower, and hence pollination will be completed. Now, the anther is usually bilobed and diathecous, consisting of 2 lobes and each lobe consisting of 2 chambers. Sometimes the stamens, the whole stamen is attached with each other, and certain times it is attached with other floral members. जैसे in case of brinjal, it is attached with petals. Stamens are attached with what? Petals. In case of brinjal, and that condition is called as epipetalous. Petalous in brinjal. Brinjal plant में ऐसा होता है कि ये जो होता है स्टेमेन जो होता है ब्रिंजल से अटैच पेटल से अटैच होता है, उस कंडीशन को हम एपिपेटलस कहते हैं. कहीं कहीं पे क्या होता है, ये जो स्टेमेंस होता है ये पेरियंथ से कनेक्टेड होता है. पेरियंथ आप जानते हैं, पेरियंथ में 2 चीजें फ्यूज हो जाती हैं, सेपल्स और पेटल्स. सेपल्स एंड पेटल्स यानी कि एक तरह से कैलेक्स और कोरोला, व्हेन दे फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज पेरियंथ. और ये फैमिली लिलिएसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो यहाँ पे मेल पार्ट भी एक साथ फ्यूज हो जाता है, यानी कि 3 स्ट्रक्चर एक साथ फ्यूज हो गए. मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमेन गेटिंग फ्यूज विथ सेपल्स एंड पेटल्स. तो ऐसा स्ट्रक्चर भी ऑब्जर्व किया जाता है, और ये ऑब्जर्व होता है किस प्लांट में? लिली प्लांट में. लिली प्लांट में ऐसा देखा जाता है. तो ये हो गया आपका एंडोशियम के बारे में. एक और चीज़ बतानी थी, कभी कभी जितने भी स्टेमेंस हैं एक ही स्टॉक में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि चाइना रोज में सारे स्टेमेंस जो हैं एक स्टॉक में प्रेजेंट होते हैं चाइना रोज में. एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, आई शुड रब दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. सारे स्टेमेंस एक जगह पे बंडल में प्रेजेंट होते हैं चाइना रोज में, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोअडल्फस. Adelphus, when they are present in one stalk found in China rose. कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बंडल में प्रेजेंट होते हैं, और कभी कभी ये बहुत सारे बंडल में प्रेजेंट होते हैं. तो जब बहुत सारे बंडल में प्रेजेंट होते हैं तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं पॉली एडल्फस. और ये सिट्रस प्लांट में होता है. जब ये 2 बंडल में प्रेजेंट होते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायएडल्फस. और ऐसा देखा गया है पी प्लांट में. तो ये हो गया एंड्रोशियम के बारे में. लेट अस नाउ टॉक अबाउट गायनीशियम और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. Now in case of gynoecium, you will observe that it consists of stigma,
consists of style and consists of ovary, swollen basal region which is called as ovary. ये तीन पार्ट प्रेजेंट है. Gynoecium consists of number of pistils also called as carpels. तीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं पिस्टल में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा इज यूजुअली अ पार्ट हैविंग अ लार्जर सरफेस एरिया, ताकि पॉलन ग्रेन जब इसके ऊपर डिपॉजिट हो तो बड़े आराम से डिपॉजिट हो जाए. कभी कभी ये फेदरी भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में स्टिग्मा आमतौर पे फेदरी होता है ताकि बड़े आराम से जो पॉलन ग्रेन है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाए. स्टाइल इज यूजुअली लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और ओवरी जो होता है वो स्वॉलन बेसल पोर्शन होता है पिस्टल का, बड़ा सा होता है. अब इसको और अगर बड़े से में दिखाएंगे तो कुछ ऐसे दिखाएंगे हम. ऐसे स्वॉलन बेसल पोर्शन. ये ओवरी है, ये आपका स्टिग्मा है. दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. नाउ दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल एंड दिस इज कॉल्ड एज ओवरी. तो ओवरी का जो बीच का पोर्शन होता है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओवरी, इट हैज प्लेसेंटा इन इट. Central cavity of the ovary contains placenta. Placenta is a structure which give rise to ovule. जैसे मान लीजिए अगर ये प्लेसेंटा है, इधर बताते हैं आपको, ये प्लेसेंटा है, तो इससे ही ओव्यूल्स का जन्म होगा, ये ओव्यूल्स बने. अब ये भी पॉसिबल है कि एक प्लेसेंटा में सिर्फ एक ओव्यूल हो, ये भी पॉसिबल है कि एक प्लेसेंटा से बहुत सारे ओव्यूल्स एराइज हो. ये डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज. ये ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बाद में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड. फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगी, दिस सीड विल कंटेन एम्ब्रियो. इसी के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो. आप जानते हो मेल और फीमेल गैमीट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट. जाइगोट बाद में इसमें मल्टी सेलुलर डिविजन्स होते हैं, माइटोसिस होता है, और बाद में ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो एक्चुअली सीड में प्रेजेंट होता है. तो इसका मतलब ये भी है कि अगर हम ये मान लें कि ये ओवरी है, तो ओवरी के अंदर एक पोजीशन होगी जहाँ पे सेंट्रल पोजीशन होगी जिसको हम ओव्यूल्स बोलेंगे. उसी ओव्यूल्स में एक छोटा सा रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, और उसी एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल होता है. ये जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं पतली सी, और इसी पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग सेल है वो पहले जाइगोट में कन्वर्ट होगा और जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा. तो अगर हम ये भी कह लें आसान शब्दों में कि ओवरी वो जगह है जिसके अंदर प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा ओव्यूल्स को जन्म देता है. इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर एक जगह होती है जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और उसी एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल होता है. फर्टिलाइजेशन होने के बाद पूरा का पूरा ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी सीड के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? एम्ब्रियो, जो कि लेटर ऑन इट गिव राइज टू प्लांट. तो आई होप यू लाइक माई टॉपिक. Thank you very much.